Good morning students, how are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Yesterday we discussed about coal and its type and uses. Today we will continue our chapter 6, that is sources of energy, and our new topic is petroleum. Petroleum is a fossil fuel. It is a dark colored, viscous and foul smelling liquid commonly called crude oil. What is other name of petroleum? Petroleum is also known as a crude oil. Crude means raw material. So you can say this is a raw oil. And how it's look? It is dark in color. Viscous means thick, and foul smelling, that means different smell comes from it. It is found in rock formations in the earth. Its name is derived from the Latin word petra. Petra means rock and oleum means oil. Literally it means rock oil. What is the meaning of petroleum? Petroleum means rock oil. And from which language petroleum word is derived? It is derived from Latin word petra. Petra plus oleum. So learn it carefully. Appearance of petroleum, how petroleum appear, and name, how its name derived. Next is occurrence of petroleum. पेट्रोलियम किस तरह से अकर करता है नेचर में? It is found at moderate depth 500 meter to 2000 meter between the two layers of impervious rocks, as you can see in this picture beta. Firstly, you will learn that petroleum is found at the depth of 500 meter to 2000 meter. And second, it is found between two layers of impervious rocks. As you can see, petroleum is between, or you can say behind the impervious rock. Impervious rock के नीचे है petroleum, and its deposits are usually found mixed with salt water. Petroleum being lighter than salt water floats over it. Natural gas is found above petroleum. It is trapped between the rock cap and the petroleum layer. As you can see in this picture beta, that this is saline water, that means salty water. But petroleum is lighter than salty water, so it will float on salt. लाइटर, कोई भी लाइटर ऑब्जेक्ट है तो वो क्या करता है? फ्लोट करता है. तो पेट्रोलियम क्या है? सोल्टी वाटर से लाइटर होने की वजह से पेट्रोलियम क्या करेगा? इस वाटर पे फ्लोट करेगा. फिर आपको क्या गिवन है? नेचुरल गैस इज फाउंड अबव द पेट्रोलियम. पेट्रोलियम के ऊपर कौन सी गैस होती है? नेचुरल गैस. तो ये किसके बीच में ट्रैप है? रॉक कैप एंड द पेट्रोलियम लेयर. पेट्रोलियम के ऊपर जो आपको लेयर गिवन है दैट इज इम्परवियस रॉक, और इसके नीचे होगा सोल्ट वाटर. सोल्ट वाटर के ऊपर पेट्रोलियम फ्लोट करता है बिकॉज पेट्रोलियम इज लाइटर देन सॉल्ट. नेक्स्ट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. रिफाइन मीन्स रेक्टिफाई करना, प्योरीफाई करना. पेट्रोलियम को किस तरह से रेक्टिफाई किया जाएगा? रिफाइन करेंगे, दैट मीन्स प्योरीफाई करना. Petroleum is a mixture of various materials which are separated from one another and are used for different purpose. The process of separating different components of petroleum into their various useful form is called refining of petroleum. As you know that in petroleum there are lot of materials found, and these different materials are used for different purpose. So by refining we separate all these डिफरेंट फॉर्म. रिफाइनिंग में क्या करेंगे? पेट्रोलियम को प्योरीफाई करना है. प्योरीफाई करने का मतलब जो पेट्रोलियम में डिफरेंट आपको प्रोडक्ट मिलेंगे उसको आप डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड देयर यूजेस आर गिवन टू यू. ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम हैज़ ऑफन कॉल्ड लिक्विड गोल्ड. व्हाट इज अदर नेम ऑफ पेट्रोलियम? इट इज़ नोन एज लिक्विड गोल्ड. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लिक्विड गोल्ड किसको बोलते हैं? पेट्रोलियम को. वी गिव बिलो लिस्ट ऑफ इट्स मेन प्रोडक्ट्स एंड द मेन यूज ऑफ ईच ऑफ दैम. यूजेस आर गिवन टू यू. यूजेस ऑफ पेट्रोलियम. फर्स्ट इज रेजिडुअल ऑयल. इट इज़ फर्दर सेपरेटेड इनटू फॉलोइंग प्रोडक्ट.
फर्स्ट जब आप पेट्रोलियम को सेपरेट प्योरीफाई करोगे तो आपको सबसे पहले क्या मिलता है, रेजिडुअल ऑयल मिलेगा। उसके भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे। फर्स्ट इज एस्फाल्ट, पैराफिन वैक्स एंड ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। एस्फाल्ट इज ब्लैक इन कलर एंड स्टिकी सॉलिड। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स एंड कोटिंग द अंडर साइड ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम रस्टिंग। आपने देखा होगा बेटा, इलेक्ट्रिक पोल्स के जो डाउन पार्ट्स होते हैं, नीचे वाले पार्ट्स, वहाँ पर पेंट किया जाता है, कोटिंग की जाती है। डार्क ब्लैक कलर की कोटिंग होती है और वो कोटिंग किसकी होती है, एस्फाल्ट की। रोड बनाने के लिए रोड में जो डार्क कलर का ब्लैक लिक्विड यूज़ किया जाता है, दैट इज़ एस्फाल्ट। लिक्विड सॉलिड यूज़ करेंगे, ब्लैक कलर का जो सॉलिड यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ एस्फाल्ट। तो एस्फाल्ट का यूज़ कहाँ किया, रोड्स के लिए एंड इलेक्ट्रिक पोल्स के जो डाउन पार्ट्स में कोटिंग की जाती है। ये कोटिंग क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए। दैट मीन्स टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ रस्टिंग। नेक्स्ट, डू यू नो इज गिवन टू यू, वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी वॉज ओपन एट प्लोएस्टी, रोमानिया। रोमानिया एक कंट्री का नेम है जहाँ पर एक सिटी है प्लोएस्टी। सबसे पहले प्लोएस्टी के अंदर जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी ऑयल ओपन किया गया था। फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी वॉज ओपन एट प्लोएस्टी, रोमानिया। जो फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी है वो सबसे पहले कहाँ ओपन की गई थी, रोमानिया में। रोमानिया की किस सिटी में, प्लोएस्टी। नेक्स्ट इज द पैराफिन वैक्स। इट इज़ अ वाइट सेमी सॉलिड विच इज़ ऑफन यूज्ड एज ग्रीस। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग वैसलीन, ऑइनमेंट्स एंड कैंडल्स। पैराफिन वैक्स का कलर कैसा होता है, वाइट कलर। जो कैंडल्स में आप वैक्स यूज़ करते हो, वैसलीन में जो पेट्रोलियम जेली होती है, वो पेट्रोलियम जेली में किसकी बनी होती है, वो पैराफिन वैक्स की। सो दीज आर यूजेस ऑफ पैराफिन वैक्स। फर्स्ट हमने क्या बोला, वैसलीन जो वाइट कलर का जेली पार्ट होगा दैट इज़ पैराफिन वैक्स। कैंडल्स में यूज़ करते हैं। ऑइंटमेंट मीन्स क्रीम, क्रीम के अंदर भी पैराफिन वैक्स का यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ अ वाइट सेमी सॉलिड विच इज़ ऑफन यूज्ड एज अ ग्रीस। नेक्स्ट इज ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल इज़ अ विस्कस ऑयल। विस्कस मीन्स थिक ऑयल है, यूज फॉर ल्यूब्रिकेटिंग मशीन्स। ल्यूब्रिकेट मीन्स स्लिपरी ऑयल होगा ये। आपने फ्रिक्शन के चैप्टर में भी किया था बेटा, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जो है, ल्यूब्रिकेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। तो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल जो है ये किससे बना हुआ है, रेजिडुअल ऑयल से। तो रेजिडुअल ऑयल के ये प्रोडक्ट हैं, एस्फाल्ट, पैराफिन वैक्स एंड ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। दीज आर 3 प्रोडक्ट ऑफ रेजिडुअल ऑयल। नेक्स्ट इज फ्यूल ऑयल। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन बॉयलर्स। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज बॉयलर्स? बॉयलर्स आर यूज्ड फॉर स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए। स्टीमर यू कैन से, स्टीम के लिए हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज बॉयलर्स। एंड बॉयलर में किसका यूज़ किया जाता है, फ्यूल ऑयल का। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन बॉयलर्स। फ्यूल ऑयल का बॉयलर्स में यूज़ करते हैं। एंड बॉयलर्स क्या होते हैं, जिसमें स्टीम बनाई जाती है। नेक्स्ट इज़ डीजल। डीजल का यूज़ कहाँ करेंगे, टू रन हैवी व्हीकल्स, मतलब जो भी हैवी व्हीकल्स हैं लाइक बसेस, ट्रैक्टर, ट्रक, उन सब में किसका यूज़ किया जाता है, डीजल का। डीजल एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं रन कराने के लिए, मतलब उनको रोड पे चलाने के लिए। नेक्स्ट इज़ कैरोसिन। कैरोसिन इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल एज वेल एज लैंटर्न्स। पुराने टाइम में जो लालटेन हुआ करते थे उसमें यूज़ करते थे ना कैरोसिन का। कैरोसिन इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल एज वेल एज इन लैंटर्न्स। नेक्स्ट इज़ द गैसोलीन और पेट्रोल। पेट्रोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन कार्स, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स। मतलब जो हैवी व्हीकल्स हैं उसमें तो हम डीजल का यूज़ करते हैं, बट कार, स्कूटर, बाइक में पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। तो अगर आपसे गैसोलीन पूछ लें, देन मीनिंग ऑफ गैसोलीन एंड पेट्रोल आर सेम। गैसोलीन का मतलब क्या होगा, पेट्रोल। इट इज़ यूज्ड फॉर ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स। क्लोथ को ड्राई क्लीन करने के लिए जो आप भेजते हो ड्राई क्लीनिंग के लिए, उसमें भी किसका यूज़ करते हैं, पेट्रोल का। या फिर आपने देखा होगा आपकी मम्मा, जब कोई भी ऐसा स्टेन लग जाता है क्लोथ्स पर जिसको आप इजीली रिमूव नहीं कर सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल
mango stain or turmeric powder stain. So to remove it, your mother use petrol. पेट्रोल को उस प्लेस पे लगा करके छोड़ देते हैं फॉर फ्यू मिनट, देन क्लॉथ जो स्टेन होता है वो स्टेन रिमूव हो जाता है. सो ड्राई क्लीनिंग के लिए पेट्रोल का यूज़ किया जाता है, हाईली रिफाइंड पेट्रोल. और यू कैन से एविएशन फ्यूल इज़ यूज्ड इन एरोप्लेन्स. एरोप्लेन में जो हम यूज़ कर रहे हैं पेट्रोल, दैट इज़ हाईली रिफाइंड पेट्रोल. हाईली रिफाइंड पेट्रोल इज़ यूज्ड इन एरोप्लेन्स. ठीक है. सो पेट्रोल का अदर नेम क्या बताया? गैसोलीन. इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन कार, स्कूटर एंड मोटरसाइकिल्स. ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं और एरोप्लेन्स में. बट एरोप्लेन में जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ हाईली रिफाइंड पेट्रोल. नेक्स्ट इज पेट्रोलियम गैस. पेट्रोलियम गैस, it is a liquefied under pressure and is then known as liquefied petroleum gas, that is LPG. पेट्रोलियम गैस को जब हाई प्रेशर पर लिक्विफाइड किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन दिस इज़ known as liquefied petroleum gas, और यू कैन से LPG. LPG इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल. डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए LPG का यूज़ किया जाता है. LPG लिक्विफाइड करेंगे उसको एट हाई प्रेशर, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में. डोमेस्टिक मीन्स घर पे यूज़ करते हैं हम LPG का, LPG सिलेंडर्स. नेक्स्ट इज़ द नेचुरल गैस. Natural gas is another fuel that is found along with petroleum in oil. Natural gas, when compressed and stored under pressure, is called compressed natural gas. What is the full form of CNG? Compressed natural gas. And how we obtain compressed natural gas? When natural gas is compressed at pressure. अंडर प्रेशर जब नेचुरल गैस को कंप्रेस करते हैं, देन दिस इज़ नोन एज CNG, और यू कैन से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. नाउ क्वेश्चन विल अराइज दैट नेम द प्लेसेस इन इंडिया वेयर नेचुरल गैस हैज़ बिन डिस्कवर्ड. सो आंसर विल बी इन इंडिया नेचुरल गैस हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन गोदावरी कृष्णा बेसिन्स, मुंबई हाई एंड त्रिपुरा. एंड पिक्चर ऑफ मुंबई हाई इज़ गिवन टू यू, that how natural gas is produced in this area. So question is clear to you. Natural gas से compressed natural gas कैसे प्रिपेयर की हमने और कहाँ पर डिस्कवरी हो चुकी है नेचुरल गैस की इंडिया में? गोदावरी कृष्णा बेसिन्स, मुंबई हाई एंड त्रिपुरा. नेक्स्ट इज द यूजेस ऑफ नेचुरल गैस. It burns readily and has a high calorific value. It is therefore used as a fuel in homes and industries. Now you know that what is the meaning of calorific value. Calorific value means आपने किसी 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न किया तो जितनी ज़्यादा आपको हीट प्रोड्यूस मिली, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज़ बर्न. जब 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न किया तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड हुई, दैट इज़ नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू. और नेचुरल गैस की कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, तो इसीलिए इसका होम्स और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल. एंड इट इज़ बेटर, ग्रीनर fuel and used in automobile and as a base ingredient in manufacture of fertilizer and chemicals. So these are uses of natural gas. तो आप इनके 4 या 5 पॉइंट्स बना करके लर्न करोगे. फर्स्ट पॉइंट आपने क्या बताया? दैट इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू. सेकंड इज इट इज़ यूज इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज. दिस इज द सेकंड पॉइंट. इट इज़ बेटर फ्यूल, बेटर देन पेट्रोल एंड डीजल यू कैन से. And fourth point is it is used as base ingredient in manufacture of fertilizer and chemicals. So you can say it is eco-friendly. Fifth point you will write yourself that it is eco-friendly. Eco means environment friendly है क्योंकि इससे pollution less होगा. It creates less pollution than other gases. So these are uses of natural gases. Last topic of this chapter is cleaner fuel. Economics, development and rapidly growing population. As you know that there is a lot of population in India, so we need buildings and food for that population.
सो मोर व्हीकल्स आर यूज्ड, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो ज़्यादा व्हीकल्स का यूज़ किया जाएगा, तो इससे पोल्यूशन होगा, सोइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन फॉर मेकिंग बिल्डिंग, people will cut trees, so it will occur deforestation, rapid industrialization, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो डिमांड क्लॉथ की और या फिर फूड इंडस्ट्री की ज़्यादा होगी, देन इंडस्ट्री विल सेटअप एट वेरी रैपिडली. Urbanizations and land degradation. Urbanization means a lot of people are coming in cities. रूरल एरियाज़ में नहीं रहना पसंद करते, अर्बन सिटीज़ में इंडस्ट्री सेटअप हो रही है. एंड लैंड डिग्रेडेशन आर ऑल वर्सनिंग द प्रॉब्लम. ये सब मतलब प्रॉब्लम है आज के टाइम पे ड्यू टू अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन. बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन. और पोल्यूशन और किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि आप कोल एंड पेट्रोलियम को बर्न करते हो, तो इनको बर्न करने से क्या होगा? देयर विल बी अ लॉट ऑफ पोल्यूशन. The present day strategy to address these environment issues is to develop technology that use renewable natural resources. So, to overcome this pollution, इस pollution को कम करने के लिए एक strategy follow करनी चाहिए हमें, या फिर ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ यूज़ करने चाहिए जिसके थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लीनर फ्यूल का यूज़ करो. और यू कैन से रीन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज शुड बी यूज्ड बाय अस, लाइक सन, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर. वाटर मीन्स हाइड्रो पावर का यूज़ करना चाहिए. रीज़न क्योंकि दीज आर इजीली अवेलेबल. सन आपको डेली मिलता है. हवा कुछ एरियाज़ में जैसे ज़्यादा फ्लो करती है तो वहाँ पर विंड एनर्जी को सेटअप किया जाता है. विंड एनर्जी हर प्लेस पर सेटअप नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए विंड की स्पीड होनी चाहिए नियर अबाउट 15,000 किलोमीटर पर आवर. तो इतनी विंड की जहाँ पर हवा की स्पीड ज़्यादा होती है तो उसी एरिया में विंड एनर्जी को सेटअप किया जा सकता है, विंड मिल को. ठीक है. सो इंडिया इज़ ब्लेस्ड विद अबंडेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड बायोमास. बायोमास मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स. इंडिया में सन आपको डेली मिलता है, सनलाइट मिल रही है, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, वाटर है. तो रीन्यूएबल सोर्सेज का हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए. दैट मीन्स दैट आर इजीली अवेलेबल टू अस. फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल, दे आर present in very less amount, so and also create a lot of pollution, so we should avoid these fuel like petrol and diesel. When burned, biomass and LPG release carbon dioxide but in relatively smaller amount. अगर हम कंपेयर करें कि LPG को जब हम बर्न कर रहे हैं, CNG को बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड दैट मीन्स पोल्यूशन होगा, बट अमाउंट ऑफ पोल्यूशन क्रिएटेड बाय दीज CNG एंड बायोमास इज़ वेरी लेस दैन पेट्रोल एंड डीजल. पेट्रोल और डीजल को बर्न करते हैं तो उससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है. तो कंपैरेटिवली LPG और CNG को बर्न करेंगे तो पोल्यूशन विल बी लेस. Natural gas is a cleaner fuel. Natural means compressed natural, that is CNG. It is a cleaner fuel and create a very less amount of pollutant. It has a fewer emission of than coal and petroleum. Petroleum means petrol diesel को burn करते हो तो इससे ज़्यादा pollution होगा, but natural gas is a cleaner fuel. ठीक है. और after burning it doesn't leave ash. जब आप LPG का यूज़ करते हो अपने किचन में तो कोई ऐश नहीं बचता, बट अगर आप वुड का यूज़ करोगे तो वुड के बाद क्या बचता है? यहाँ पर ऐश बचता है. ऐश मीन्स वुड को बर्न करते हो तो बर्न करने के बाद एक पाउडर फॉर्म बचेगी. ठीक है. सो CNG ऐशलेस फ्यूल होगा, नो ऐश पार्टिकल्स आफ्टर बर्निंग. जब कंप्रेस्ड नेचुरल या LPG को बर्न किया जाता है तो ऐश पार्टिकल्स नहीं बचते, जबकि वुड को बर्न करेंगे तो ऐश पार्टिकल्स रहेंगे. और लो अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स है ये. कार्बन डाइऑक्साइड लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होती है. सो दिस इज़ अ क्लीनर फ्यूल. इसलिए क्या बोला इसको हमने? क्लीनर फ्यूल है ये. नेक्स्ट इज फॉर आवर फ्यूचर एंड प्रेजेंट डे energy needs, we need to look for alternative cleaner sources such as solar energy, tidal energy, geothermal, hydel and wind energy. टाइडल एनर्जी जो ओशन के आसपास का एरिया है वहाँ पर टाइड्स बनती हैं, दैट इज़ टाइडल. एंड हाइडल मीन्स वाटर का यूज़ करके आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हो. सोलर एनर्जी इट इज़ यूज फॉर सोलर बैटरी, सोलर कुकर में यूज़ की जा सकती है. सोलर गीज़र भी यूज़ करते हैं हम.
So these are alternative sources which we can use at present time and for future also. This will also protect the environment and reduce the risk of global warming. Global warming means sudden temperature का change हो जाना. As you know that Earth's surface temperature increases due to global warming. And why this global warming occur? Due to presence of carbon dioxide. तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मेन गैस है कौन सी होगी? वो कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम प्रोड्यूस्ड होगी व्हेन वी विल यूज़ alternate sources like solar energy, wind energy and hydro energy than petrol or diesel. So this will help to protect the environment and also reduce the global warming. Global warming means earth temperature का increase करना. Further, fossil fuels are then more likely to be available for future generations. As you know that fossil fuels take a lot of time, in fact million of years, to produce petrol and diesel, but solar energy, wind energy, these are renewable sources and easily available. So for future generation these are the best sources. In fact at present time we should use alternate sources like solar and wind energy. So only government cannot do nothing without us. We should also help to protect the environment. So today your work is you have to read chapter 6 beta. Read chapter 6 carefully and learn extra question of this chapter.